Hello friends, welcome you to the second challenge of the Lead Code, and it's the July challenge. So let's see the question. It's a find the kth closest element. So what's the question we are going to discuss? And we discussed two approaches over there. Like one is the most appropriate approach, and second is like easy approach, something like easy to understand, and another one is the binary search. Okay. So video maybe bit slighter big, but you get the intuition to the question, and you will really able to learn a great concept about that. Okay. So let's see what's the question. So friends, question is start with like you have given a sorted array, okay, like 1, 2, 3, 4 and 5, and you are given the value of the k. Like you have to return the k number of the elements, and how's the k number of the elements you have to return? Like you have given x equals to 3, so you have to just search x equals to 3, and like you there is an 3, so you have to return like when you minus the both of the numbers, so it could be smaller than the another one, like 3 2 minus 3, the absolute value is 1, so 2 will be the answer, 2 will be in the list, and after that 4 will be in the list. Why? Because 4 minus 1 also 1, 3 minus 3 is also 0, so we also put it 3 over here, and we have to get back to the minimum index. Like if a is less than b, so we have to return the a. Okay, we have to just return the 4 elements, so we have to return 4. So there is a comparison between 1 and 5, because 3 minus 1 is also 2, and 3 minus 5, 5 minus 3 is also 2. Okay, so we have to pass on the smaller one, so this one. Okay, and let's see the another example. Like x is the minus 1, so minus 1 to अब array में है ही नहीं, there is no minus 1 inside the array. So what we can do, we have to pass on the minimum difference number. Okay, like minus 1 minus 1, like it's minus 2, so we have to return minus 1 minus 2, sorry 2 3 and 4. Okay, so clearly sorted array तो binary search का directly दिख रहा है, बट मैं आपके साथ एक और अप्रोच शेयर करना चाहता था. लाइक इट्स इजी वन टू अंडरस्टैंड. लाइक बाइनरी सर्च फॉर द kth एलिमेंट इज स्लाइटली टफर देन दैट. सो पहले बेसिक अप्रोच डिस्कस करते हैं, देन वी कैन मूव ऑन टू द टफर वन. ओके, लेट्स टेक एन एरे. Let's let me copy this. Okay, let me copy it here. So there is an array. So what we have to do, like but the naive approach first. I will discuss the simple approach, like you can easily understand. So here x equals to 3. So सबसे पहले intuition क्या दिया यार, like we have to just make an array or anything else, so that we can just like minus करना हमें, तो we can minus each number and get the answer. Like 3 minus 2, like it's 2 absolute. I am just writing the absolute value. Like 3 minus 1 it's 2, 3 minus 2 it's 1, 3 minus 3 that's 0, 3 minus 4, what's 3 minus 4? That's 1, right? 3 minus 2, that's 2. Okay, so अब यार how we can get to know like ये जो 2 आया ये 1 से आया या 5 से आया. So there is also need to store an index, क्योंकि हमें k मिनिमम चाहिए. तो k मिनिमम कैसे निकलेंगे? फर्स्ट मिनिमम ये वाला आ गया अपने पास, सेकंड मिनिमम ये दोनों आ गए, एंड 4 मिनिमम चाहिए थे ना, वी नीड 4 मिनिमम, सो एक ही वाला आ गया. ठीक है, तो यार अब हमें कैसे पता लगे, तो हमें एक इंडेक्स भी स्टोर करना पड़ेगा. सो वी कैन इजीली मेक एन पेयर क्लास. ओके, हम एक क्लास बना लेंगे पेयर नाम से, जिसके अंदर हम दो चीज़ें स्टोर करवा लेंगे, अपनी ये वाली वैल्यू एंड वो एंड इंडेक्स, और बाद में हम kth वाले लाइक हम एक प्रायोरिटी क्यू बना लेते हैं. इसके लिए इजी रहेगा. प्रायोरिटी क्यू क्या होती है? प्रायोरिटी क्यू या तो मिनिमम हम उसे वो कर सकते हैं, क्या कहते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं कि हम या तो मिनिमम एलिमेंट्स दें या मैक्सिमम एलिमेंट्स दें. सो इजीली हम प्रायोरिटी क्यू का यूज़ करके पेयर क्लास के लिए, तो हम इजीली हम ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं. सो लेट्स ट्राई टू कोड. ओके, एंड उसके बाद हम ड्राई रन करेंगे. तो अभी अगर कोई भी कंसेप्ट नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है. वी विल डू द ड्राई रन एंड इट विल बी easy for you to understand. So let's make a class. Okay, class I will name it like pair, and I will store a int value. It's val comma index. I will store two values. Okay, for the pair class, like we have to also apply the priority queue. Okay, we have to also give the priority queue. So I am use the comparable. Comparable, and I will use so if you don't know about your comparable, it's used to compare. Like I will provide the value on which, like there is a two values, so the compiler might be confused on which value it have to compile. So I will provide
the value on which it will compare and give me the result. Okay, so that's the easy approach. So let's start to write. Let make for it int val comma int index. Okay, so this dot val equals to id val, this dot idx equals to idx. Okay, so let's apply the comparable. So public int comparable compare to, okay, and compare to, we can add a compare and value of, okay, and like it's on which basis we have to just return the value. So o dot pair, o dot, we have to compare over the val. So okay, o dot val minus this dot val. Okay. So it will sort in the ascending order. Okay, now let's try to make our main function. Okay, let's make a priority queue of the which class is the pair class which I have initialized above. Okay, so I write pq equals to new priority. Okay, I think you able to understand how I make the priority queue. Okay, like then I initialize k z equals to k, because I have to keep on subtracting that, like I am generating the for or while loop, so that it can easily to for me to compare. For int I equals to 0, I लेस देन array डॉट लेंथ, हम एक लेंथ पे लूप मार देंगे एंड आई प्लस प्लस. ओके, एंड उसके बाद इंट ए इक्वल्स टू मैथ डॉट ओडीएस, हम फटाफट मैथ डॉट एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल देते हैं माइनस करके एरे ऑफ आई माइनस एक्स. ओके, फिर सिंपली हमें एक एब्सोल्यूट वैल्यू दे देगा जो भी हमने माइनस करके निकाली है, जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे, हमने माइनस कर करके वैल्यूज़ निकाली थी, तो ये माइनस कर करके हमें वैल्यूज़ देगा. एंड हम इजीली इफ हम ये कभी डालेंगे अगर k की वैल्यू ग्रेटर देन है 0 से. ओके, तो तभी हम ये वैल्यूज़ अपने साथ डालेंगे. तो पी क्यू डॉट ऐड, तो हम पी क्यू के अंदर डायरेक्टली ऐड कर देंगे अपनी वैल्यूज़. सो कैसे ऐड करेंगे, न्यू पेयर, हमने एक नया पेयर बनाया, तो नए पेयर में क्या क्या वैल्यू डालनी है हमें, वेल इट्स 1 सॉरी ए, एंड आई पे इंडेक्स डालना है तो आई एंड आई विल सब्ट्रैक्ट के माइनस माइनस, सो दैट आई विल गेट द वैल्यू. एल्स अगर ऐसा होता नहीं है, अगर ऐसा नहीं होता तो हम क्या करेंगे, इफ पी क्यू डॉट पी डॉट वेल, ये मैं अभी आपको समझाता हूँ, अभी हम ड्राई रन करेंगे तो यू कैन ईजिली एबल टू नो हाउ आई कैन डूइंग दिस. ओके, सो हम क्या करते हैं, सीधा रिमूव कर देते हैं डायरेक्टली, और उसके बाद हम पेयर को ही ऐड. तो यार पहले आगे कोड लिखने से पहले, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन, this much of the code. So what I am doing here, okay, let's paste it. Let me take it here. Yeah, so how it was running, like I will initialize for loop. Okay, I think it changes. So let's discuss over here. Okay, so what I am doing here, like मैंने पूरे array पे loop मारा, it start looping over the array. I take out the absolute value and जब तक k की वैल्यू बढ़ी थी 0 तक, तो मैंने क्या करा, डायरेक्टली सारे एलिमेंट्स स्टोर करवाता गया प्रायोरिटी क्यू में. बट कीप इन माइंड हमें क्या चाहिए था, मिनिमम एलिमेंट्स ओनली, है ना. तो हम मिनिमम एलिमेंट्स के लिए क्या कर रहे हैं, पहले हमने सारे के सारे बड़े छोटे सारे एलिमेंट्स डलवा लिए. ठीक है, प्रायोरिटी क्यू में. प्रायोरिटी क्यू करता क्या है, डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेगा, क्योंकि हमने कंपेयर में ओ वैल डॉट दिस वैल माइनस करा है ना. तो हम क्या कर रहे हैं यार, कि हमने स्टार्टिंग से लिया, शुरुआत से, ठीक है, सारे एलिमेंट एरे के डलवा दिए जितने भी थे. अब आगे जाके हम कंपेयर कर रहे हैं, लाइक हमने क्या करा, 2 1 0, शुरुआत में ये था, हमने 2 1 0 एंड 1, हमने ये चारों डलवा दिए. एंड इसके बाद आगे जाके हम कंपेयर कर रहे हैं इनमें से, कि यार अगर आगे वाला एलिमेंट छोटा आ रहा है हमारे सबसे बड़े वाले एलिमेंट से, ओके, सबसे बड़े वाले एलिमेंट से अगर बड़ा आ रहा है, हमने पिक करके देखा सबसे बड़े वाले एलिमेंट से अगर बड़ा आ रहा है, तो हम उसे रिमूव करेंगे और अपने नए वाले को डाल देंगे, क्योंकि वो छोटा होगा, है ना.
तो मैंने ये यहाँ पे ऐसे इम्प्लीमेंट करा एंड नाउ लेट्स ट्राई। अब हमारे पास प्रायोरिटी भी पूरी बन रही है ना, तो फटाफट हम लिस्ट बना लेते हैं। लिस्ट किसकी दे रही है हमें, इंटीजर की, दैट्स नाइस। एंड इंटीजर लेट्स नेम इट एज आंसर एंड न्यू अरे लिस्ट। ओके, सो हमने न्यू एरे लिस्ट बनाई। फटाफट फॉर लूप मार लेते हैं। इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन वैल्यू ऑफ के, बट के तो हमने माइनस कर करके 0 कर दिया था, तो वैल्यू ऑफ जेड कर देंगे यहाँ पे। ओके, इसलिए मैंने वहाँ पे एक पॉइंटर रख लिया था अपने पास। एंड एक हम पेयर नाम ले देते हैं, उसका नाम रख देते हैं लेट्स टेक ए वैल्यू। ओके, सो लेट्स टेक आउट द वैल्यू फ्रॉम द प्रायोरिटी क्यू। आई रिमूव प्रायोरिटी क्यू में कई एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि हमने के डाले थे उसके बाद निकालते रहते तब डाले थे। ओके, सो प्रायोरिटी क्यू डू नॉट हैव द एक्सेस मेंबर्स अदर देन दैट, सो just put answer dot add, I add in the answer like array। अब हमें चाहिए कौन सा, एरे वाला एलिमेंट चाहिए, क्योंकि हमें डालना है एरे वाला है, ना कि हमें माइनस करने वाला डालना है ना। सो हमने इसलिए इंडेक्स स्टोर करवाया था पी क्यू पे। सो वैल्यू डॉट आई डी एक्स, देखो ये वाला जो आई डी एक्स था ऊपर वाला आई डी एक्स हमने इसके अंदर डाल दिया, ऐड कर दिया। एंड जस्ट ये करने के बाद हमें यार एक काम और करना पड़ेगा। ऊपर लिखा है हमें कलेक्शन सॉर्टेड देना है ना, तो हमें एक सॉर्ट करके वो डाल देते हैं फटाफट। आई थिंक इट विल रन ऑल फाइन। ओके, लेट्स ट्राई टू रन इट। पेयर implement, oh sorry, spell mistake, comparable, yeah, it's correct right now। let's see, public int compare to, okay, oh it's public, spell mistake, oh sorry for the spell mistake। I think now it will run fine। yeah, it's running fine। Let's try to submit it। it's accepted। so it's a naive approach, let me show you why it's naive, because it's take a lots of time, like उसके बाद हम उसे compare भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। so it's 0 minutes ago, time not showing me the time chart, it will take a while maybe to show the time। yeah, it's here, so you can see it, you are here, like I am here in the 14% of the submissions। so the best approach for this is the like binary search। so let's discuss the binary search approach, how we can proceed in the binary search, and then I will tell you how you can do it। okay, so for the binary search, like let's take first let's take it, let me take it। okay, so for the binary search, what we have to do here, we can apply the binary search for the 3। okay, I will explain you the process। binary search will search the element in n log n। okay, it will search it, oh sorry, log n, it will search the element। okay, let's take it search if this, the index is I, it will return me the index I। okay, so जब इसने इंडेक्स हमें आई रिटर्न कर दिया, तो हमें कितने एलिमेंट्स चाहिए, के एलिमेंट्स। तो हम क्या सेट करेंगे, लेफ्ट को हम के माइनस एल पे सेट करेंगे, के माइनस लेफ्ट पे, एंड राइट को हम सेट करेंगे आई के आई प्लस के पे। ओके, तो हमें, क्योंकि देखो क्या हो सकता है, लेट्स एज्यूम लाइक ये वाले, अभी हम ये बहुत बेसिक सा है तो हम इसे छोड़ देते हैं, थोड़ा बड़ा लेते हैं, लाइक 2 8 9 10 11। तो हमें फाइंड आउट करना है 8 के पास वाले एलिमेंट्स। ठीक है, तो हमेशा वो सारे राइट पे मिलेंगे। अब हमें लेफ्ट पे 2 या फिर 1 क्यों नहीं मिला, बिकॉज क्योंकि वो काफ़ी दूर हो जाएंगे और उनका डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हमारा आंसर में वो नहीं आएंगे, हमारे आंसर में आएंगे 8 9 10 11। अरे सॉर्टेड है, फिर भी देखो राइट पे है ना, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, दोनों देखने पड़ेंगे जाके, आई माइनस के पे भी, आई माइनस के एलिमेंट्स पे भी, और आई प्लस के एलिमेंट्स पे भी। ठीक है, तो हम पहले फटाफट बाइनरी सर्च का कोड लिख लेते हैं। let me clear this code so that we can able to identify। okay, so let me clear this also, like we don't need to be make a pair। okay, now I have to make the binary search। okay, बाइनरी सर्च का एक हम वो बना लेंगे, इसके अंदर हम क्या क्या फाइंड आउट करेंगे, एंड एरे, जिसके अंदर हम एक एरे भेजेंगे और अपना नंबर भेजेंगे। ओके, लेट मी नेम इट एज नम, एंड
द फंक्शन इज ऑफ द इन टाइप हमने एक फंक्शन बनाया एंड उसके अंदर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, बाइनरी सर्च। तो फटाफट हम लिख लेते हैं लेफ्ट इक्वल टू 0। आई थिंक बाइनरी सर्च का कोड आता होगा, एक बार मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। हम क्या करते हैं, सबसे मिन पे रखते हैं, मैक्स पे रखते हैं एंड उसके बाद मिड पे देखते हैं, क्योंकि सॉर्टेड एरे अगर मिड हमारा जो नंबर है मिड से बड़ा है तो हम लेफ्ट को मिड +1 पे सेट कर देते हैं और आगे सर्च करते हैं, वरना हम राइट को मिड -1 पे सेट करते हैं उसके बाद आगे सर्च करते हैं। तो हम जल्दी से देख लेते हैं। अभी हम इसके ड्राई रन करेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड वाइल लेफ्ट इज लेस देन राइट, एंड जैसे ही लेफ्ट ज़्यादा हो जाएगा तो हम अपने एलिमेंट पर पहुँच जाएंगे। मीन्स हमें नहीं मिला तो हम ऐसे रिटर्न कर देंगे। तो हम फटाफट लिख देते हैं लेफ्ट प्लस राइट माइनस लेफ्ट बाई 2। ठीक है, हमने फटाफट मिड निकाला। इफ अब क्या करेंगे, एरे का अगर मिड अगर एरे का मिड हमारा किसके इक्वल हो जाता है, इक्वल इक्वल टू किसके है, हमारे नम की है, तो हम यहीं से रिटर्न कर देंगे मिड के लिए, क्योंकि हमें अपना एलिमेंट मिल चुका है ना। वरना हम क्या करेंगे, एल्स अगर हमारा एरे मिड अगर हमारा एरे मिड कहाँ पर है, छोटा है, तो देखो एरे मिड क्या है, छोटा है, तो हमें राइट को कहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, हमारे मिड राइट को हम शिफ्ट करेंगे मिड -1 पे। ओके, सॉरी हमारा एरे अगर छोटा है नम से, मीन्स हमारा जो मिड वाला वैल्यू है छोटा है, तो हमें सारे लेफ्ट में मिलेंगे, तो लेफ्ट हम इक्वल कर देंगे मिड +1 के। ओके, वरना हम क्या करेंगे, इजीली राइट को शिफ्ट कर देंगे मिड -1 के। ओके, एंड हम रिटर्न कर देंगे लेफ्ट। तो ये बाइनरी सर्च का हो गया। अब हमें करना क्या है यार, बाइनरी सर्च हमने निकाल चुके हैं, तो अब हम सिंपली हम क्या करेंगे, अपना एक इंडेक्स निकाल लेते हैं पहले। तो इंडेक्स इक्वल टू बाइनरी सर्च और अपना एरे भेज देंगे। और हमें किसके लिए ढूंढना है, एक्स के लिए, तो हम एक्स के लिए आराम से इजीली ढूंढ देंगे। ओके, सो एक्स के लिए हमें ढूंढना था, तो हमने एक्स के लिए यहाँ पे इसे भेज दिया। तो हम देखेंगे यार कि हमारा लेफ्ट क्या आया, राइट क्या आया, तो हम एक लेफ्ट बना लेते हैं। ओके, तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि हमें इंडेक्स से अगर 3 हमें जहाँ पे भी मिला उससे -k एलिमेंट्स तक जाना है, तो -k। अब हम एक माइनस और कर देंगे ताकि इंडेक्स के बेसिस पे, क्योंकि वो 0 से स्टार्ट होता है। ओके, तो सेम हम इंडेक्स राइट के लिए भी निकाल लेते हैं, राइट इंडेक्स माइनस नाउ +k -1। सो इंडेक्स के लिए भी अपना काम हो गया। अब यार अगर देखो माइनस करा k की वैल्यू ज़्यादा है तो नेगेटिव भी आ सकती है, बट नेगेटिव पे तो हमें एरर दे जाएगा, क्योंकि नेगेटिव पे तो हमारी कोई वैल्यूज़ नहीं होती है ना। तो हम एक लूप मार देते हैं फटाफट। अगर हमारा लेफ्ट छोटा है 0 से, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ लेफ्ट ++, और ऐसे ही लूप एक राइट के लिए भी मार देते हैं। अगर हमारा राइट बड़ा ज़्यादा है एरे डॉट लेंथ से, तो हम क्या करेंगे, राइट माइनस। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अगर बड़ा आ जाएगा और अगर मैं एरे पे सर्च मारूंगा तो ये हमेशा एरर देगा। तो मैंने इसलिए, ताकि वो एरर ना दे, तो मैंने ये -+ कर दिया। एंड उसके बाद हम फटाफट अपनी लिस्ट बना लेते हैं, इंटीजर आंसर की हम लिस्ट बना लेते हैं ताकि हम अपने आंसर को स्टोर करवा सकें। ओके, न्यू एरे लिस्ट। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होगा यार, क्योंकि मैंने कहा था बिकॉज वी हैव टू डू अ लॉट्स ऑफ कंपटीशन ओवर हियर, लाइक थोड़ा सा बाइनरी सर्च एंड ऑल ऑफ दैट, सो ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बने, तो इसलिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा कर दिया मैंने। ओके, सो अब फटाफट एक वाइल लूप लगा लेते हैं। अब वाइल लूप कहाँ पे लगानी है हम देखते हैं। अगर हमारा राइट, अगर हमने जो राइट नंबर्स लिए हुए हैं वो माइनस लेफ्ट, अगर लेफ्ट +1। ओके, +1 क्यों, क्योंकि वो वाला एलिमेंट भी हम ले रहे हैं, तो लेफ्ट और राइट बाउंड दो बाउंड्स को ले रहे हैं। अगर वो बड़ा है k से, जब तक वो बड़ा होंगे k से, तो जब तक के लिए हम लूप मारते हैं। ओके, तो हम चेक क्या करेंगे, फटाफट ये देखते हैं, और उसके बाद मैं ड्राई रन करूँगा। अगर समझ में नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं ड्राई रन में आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, सो हम क्या कर रहे हैं, अब फटाफट हम निकालते हैं, माइनस तो करना ही है, तो मैथ डॉट एप्स वैल्यू, अगर x माइनस एरे लेफ्ट, अगर हमारा ये वाली लेफ्ट वाली वैल्यू क्या है, एक सेकेंड, इट्स यस, ओके, लेस देन या फिर इक्वल टू है मैथ डॉट एप्स में।
अब आप देखोगे कि यहाँ पे यार हमें सॉर्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सॉर्टेड मिलेगा, क्योंकि मैंने पहले क्या चेक करा, x माइनस दिस, ओके, लेफ्ट वाला, ओके। सो अगर ये सॉर्टेड मिलता है तो हमारे लिए अच्छी बात होगी, हमें सॉर्टेड ही मिलेगा। अरे और अब हम राइट वाले से चेक कर लेते हैं। अगर वो छोटा है तो हमें क्या करना है, राइट माइनस माइनस, क्यों, क्योंकि राइट पे हमें नहीं मिलेगा, इसका मतलब आंसर है ना, वरना लेफ्ट को प्लस प्लस कर, ठीक है। अब बस हमारा ये काम खत्म हो चुका है। अब हमें एग्जैक्टली लेफ्ट और राइट वाले मिल चुके हैं अपने जो भी थे, तो हमें सिंपल एक लूप मारना है, इंट आई इक्वल्स टू लेफ्ट राइट तक, आई लेस देन इक्वल्स टू राइट ऑफ तक, और आई प्लस प्लस, और हमें कुछ नहीं करना यार, अब हमें इंडेक्स को पुट करवा लेना है। सो आंसर डॉट ऐड, फटाफट हम पुट करवा लेते हैं, ऐड करवा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ये चल कैसे रहा है, ओके। एरे ऑफ आई result, sorry, return answer. Let's try to run it, and उसके बाद हम देखेंगे कि return statement, let's see where it was missing. It's line number 18, okay, it's line number 18. Oh, I put this in there, okay. Control X, control, sorry, return left, okay. Let's try it here, okay. Yeah, it's giving me the correct. Let's try to submit. So it have been submitted, okay. So let's see how it is running, okay. Let's see, where is this, let me take whole code to there, telling you the full code. So how the code is running, so let's take 1 2 3, let's take some big array, 6 7 and 8, okay. The value of the k is 3, let's get value of the k is 3, and x is 4, okay. Let's take it just an example. So अब हमारा एल्गोरिथम क्या करेगा, फर्स्ट दिस विल रन द फंक्शन and this will take out 0 1 2 3, it will return the third index, okay. So what we can do, like we can put our left over the k minus 1, index dot k minus 1 means 3 minus 3 minus 1, it will be there on somewhat here. So it is less than left, so I increase the left so that it will in the range of our array, okay. For the right, हमने राइट के लिए भी सेम करा, हमने क्या करा कि राइट अगर आगे है, फिलहाल राइट कहाँ पे है, 3 + 3 दैट 6 -1 यहाँ पे होगा एरे, ठीक है। तो हमने अभी यहाँ पे रखा हुआ है, तो ताकि हमारी रेंज के अंदर रहे तो हमने यहाँ पे रखा, तो r माइनस माइनस कर देंगे, बट अभी रेंज के अंदर है तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है, सो इट विल वर्क वेरी फाइन। आफ्टर दैट वी जस्ट डू, हमने एक इनिशियलाइज करा एक, एंड उसके बाद हमने क्या करा कि राइट माइनस लेफ्ट, जब तक राइट माइनस लेफ्ट +1 के से छोटे हैं, इसका बड़े हैं, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ज़्यादा एलिमेंट है के से, है ना। तो हमने क्या करा, अब हमें वो एलिमेंट्स हटाने हैं, तो कैसे हटाएंगे। सो अगर हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द लेफ्ट अगर छोटा है या इक्वल टू है राइट से, तो हम राइट को माइनस माइनस कर देंगे, क्योंकि छोटा है तो हमें चाहिए ही लेफ्ट, है ना। अगर इक्वल टू आता है तो भी हमें लेफ्ट चाहिए, तो हम राइट को माइनस माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारे पास के से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, वरना हम लेफ्ट को प्लस प्लस कर देंगे, क्योंकि हो सकता है हमें राइट पे आंसर मिले तो हम आगे आगे चलते जाएंगे, है ना। तो हम ये चीज़ तब तक चलाएंगे, दिस वन, सॉरी, हाँ। सो ये चीज़ हम तब तक चलाएंगे, ओके। आई थिंक ये डबल बार आ गया, तो हम इसे ऊपर कर देते हैं, इसे हम सेलेक्ट करके यहाँ पे या दिस इज द कोड, ओके। तो हम क्या करेंगे, तो उसके बाद हमने एब्सोल्यूट राइट माइनस माइनस कर दिया, और उसके बाद हमारे पास एक स्पेसिफिक रेंज आ गई जो कि हमारे आंसर्स थे, मीन्स अगर हमारा आंसर यहाँ से यहाँ तक है तो हमारे पास लेफ़्ट रेंज यहाँ पे आ गई, राइट रेंज यहाँ पे आ गई, तो हमारे पास राइट और लेफ़्ट की एक स्पेसिफिक रेंज आ जाएगी, तो कि हम अपने एरे में डलवा देंगे एंड रिटर्न कर देंगे आंसर को। सो गाइज दिस इज़ द कोड, एंड आई थिंक आपको पूरी अप्रोच अच्छे से समझ में आई होगी, दोनों अप्रोच समझ में आई होगी। लेट मी शो यू लाइक इसका टाइम कितना है, बिकॉज
this is much better code. So it's 99.66% हाईएस्ट परसेंटेज देन अदर कोड, है ना. तो मीन्स ये वाला कोड काफ़ी अच्छा है क्योंकि बाइनरी सर्च लग रही है, लॉग एन में काम हो रहा है एंड सम ऑफ बेसिक लूप से काम हो जा रहा है. तो उसके अंदर प्रायोरिटी क्यों बन रही थी एंड देयर इज़ अ मच लार्जर कॉम्पिटिशन ओवर देयर. ओके. एंड उसके बाद हम कलेक्शन सॉर्ट भी कर रहे थे कि वैल्यू अगर लार्ज हुई तो कलेक्शन सॉर्ट में भी काफ़ी टाइम लगेगा. So guys, this is the video and thank you for watching. Please subscribe. I will take you to the हम ऐसी आंसर्स लेके आएंगे